हाँ जी, अपनी प्रीवियस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਮੀ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट ਰਹੂਗੀ। हाँ जी, फर्स्ट है अपने को एप्लीकेशन जो है वो है टू फाइंड एटॉमिक मास। ਆਪਾਂ एटॉमिक मास फाइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਸ फाइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੈਮੀ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। SEMF ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਸੈਮੀ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਟॉमिक ਮਾਸ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਸ फाइंड आउट ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ फाइंड आउट ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 1 बाय 1 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ फाइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। फर्स्ट अपने को देखो जो फर्स्ट है एटॉमिक मास या न्यूक्लियर मास वो किवें फाइंड आउट होएगा। आपां नूं बाइंडिंग एनर्जी दा एक्सप्रेशन पता है, आपां फाइंड आउट करके आए हां ते बाइंडिंग एनर्जी नूं आपां इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं कि प्रोटॉन्स दा मास प्लस न्यूट्रॉन्स दा मास, जदों इन्हां दोनां दे मास दे विच आपां न्यूक्लियस दा मास माइनस कर दिंदे हां तां भी अपने कोल बाइंडिंग एनर्जी आंदी है। ਤਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ 1 ਤੇ 2 ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਈਏ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਸ ਹੈ इसनू इस पूरी टर्म ਦੇ इक्वल रख के ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस AVA माइनस AS A दी पावर 2/3 माइनस AC Z into Z माइनस 1 A दी पावर 1/3 माइनस AS A माइनस 2Z स्क्वायर अपॉन A प्लस माइनस A डेल्टा अपॉन A दी पावर 3/2। आई होप कि सबनू ये टर्म्स क्लीयर ने। वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम एनर्जी, सिमेट्री एनर्जी इत्थे ए आ जाएगा, असिमेट्रिक एनर्जी ते अपने कोल पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, ये आपां अपनी प्रीवियस क्लास दे विच डिस्कस किया सी। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ A ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, Z ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦਾ ਮਾਸ, ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਸ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਅਗਰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एटॉमिक मास है तो आप इत्थे हाइड्रोजन का मास लै लांगे, अगर न्यूक्लीयर मास है तो इत्थे प्रोटोन का। बिकॉज अपने कोल न्यूक्लीयर मास वेले सिर्फ आपां न्यूक्लियस की गल करते हैं, बाहर वाले इलैक्ट्रॉन्स की गल नहीं करते। तो जो आपां बाहर वाले इलैक्ट्रॉन्स भी विच इनकलूड करते तो मतलब आपां पूरे एटम की गल कर रहे हैं, तो उत्थों अपने कोल एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर सारियां टर्म्स आपां एज इट इज ही पुट करांगे। दैन अपने कोल सैकेंड जो इसकी एप्लीकेशन है, सैकेंड है अपने कोल रेडियस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई। ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਂਡ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਮਿਰਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਿਰਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ 6 ਕਾਰਬਨ 13 7 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 13, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਰਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ 2 ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A1 Z1 X ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਐਟਮ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ A2 Z2। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ A1 ਤੇ A2 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਮੀਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ ਹੋਵੇ।
दूजी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि दोनों के एटॉमिक नंबर्स दे विच डिफरेंस 1 होना चाहिए। अगर Z1 Z2 तो ज्यादा है तो आप कह सकते हैं Z माइनस Z2 1 होना चाहिए। अगर Z2 Z1 तो ज्यादा है तो आप कह सकते हैं कि Z2 माइनस Z1 इक्वल टू 1 है। जिवें अपने को इस दे विच की सीगा Z2 ज्यादा सी Z1 तो 7 माइनस 6 अपने को कितना हो गया 1 हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ने कि मास नंबर सेम होना चाहिए तो उन्होंने एटॉमिक नंबर के 1 का डिफरेंस होना चाहिए, उदों ही आप उन्होंने मिरर न्यूक्लियाई कह सकते हैं। तो अगर अपने को Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 1 है, या फिर कह सकते हैं Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 1 है, इतों अपने को आ चीज आ जाऊगी ना कि Z2 की वैल्यू कितनी आ जाऊगी Z1 माइनस Z1, या फिर इतों आप वैल्यू कढ़िए Z1 की वो कितनी आ जाऊगी Z2 माइनस 1। तो मतलब आ प्रॉपर्टीज ने जो मिरर न्यूक्लियाइज दियां होनियां चाहिए ने। दूजी चीज ये है कि अपन ये पता है कि जो मास नंबर है वो तो दोनों का सेम ही है। सपोज अपने को ए है, ठीक है, तो अगर आप इथों ऑब्जर्व करिए जेड़ा 13 है मास नंबर वो दोनों के एटॉमिक नंबर्स नू ऐड करके बन रहे हैं ना, तो जेड़ा मास नंबर है वो 6 + 7 के इक्वल होगा, हमेशा ही एवं होगा मिरर न्यूक्लियाई दे विच। मतलब ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू Z1 + Z2 कि जेड़ा एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट के एटॉमिक नंबर प्लस सैकेंड के एटॉमिक नंबर के सम के इक्वल होएगा। तो A इज इक्वल टू Z1 + Z2। अगर आप Z2 की वैल्यू Z1 की फॉर्म के कट के पुट करिए तो इत्थे कितना आ जाएगा 2Z1 माइनस 1। तो यह भी मास नंबर ते एटॉमिक नंबर के रिलेशन बनता है। सिमिलरली अगर Z2 वड्डा है तो आप इत्थे 2Z2 माइनस 1 बन जाएगा। तो ये मिरर न्यूक्लियाई दी प्रॉपर्टीज ने। कदों दो न्यूक्लियाइज नूं आपां मिरर न्यूक्लियाई कह सकते हैं जो दोनों का मास नंबर सेम है तो एटॉमिक नंबर के 1 का डिफरेंस है। तो यह भी अपने को मिरर न्यूक्लियाई की ही एग्जाम्पल है। 3 लिथियम 7 4 बेरीलियम 7 दोनों का एटॉमिक मास सेम है तो एटॉमिक नंबर के 1 का डिफरेंस है। हाँ जी, हुण अगर आप देखिए लिथियम ते बेरीलियम दे विच दोनों का ही जो मास नंबर है वो 7 है, बट जो एटॉमिक नंबर है वो लिथियम का 3 है तो बेरीलियम का 4 है। अगर आप लिथियम के एटॉमिक नंबर नू Z नाल डिनोट करते हैं तो ये मास नंबर नू A नाल, तो इत्थे भी मास नंबर तो A ही होएगा बेरीलियम का। बट देखो जो बेरीलियम का एटॉमिक नंबर है वो अपने को A माइनस Z, जो इसका Z है उसनू A दे विचों जदों माइनस करांगे A माइनस Z उससे इक्वल होएगा। हमेशा ये होएगा कि अगर दो मिरर न्यूक्लियाई ने दोनों के प्रोटोन से न्यूट्रॉन्स मतलब इंटरचेंज होंगे। जिवें इस दे विच अगर अपने को जो प्रोटोन्स ने वो किन्ने हैं 3 ते प्रोटोन्स 3 ते न्यूट्रॉन्स किन्ने हैं 4 लिथियम दे विच। बट बेरीलियम दे विच की है, बेरीलियम दे विच प्रोटोन्स 4 ने ते न्यूट्रॉन्स 3 ने, मतलब इंटरचेंज होंदे हैं। प्रोटोन्स जिन्ने एक दे प्रोटोन्स उन्ने दूजे दे न्यूट्रॉन्स ते जिन्ने एक दे न्यूट्रॉन्स उन्ने दूजे दे प्रोटोन्स। आप इस तरीके नाल रिप्रेजेंट करते हैं। एक दा एटॉमिक नंबर जे Z है तो दूजे का A माइनस Z होएगा। तो हुण आपां जो यही चीज नू यूज करते हुए आपां रेडियस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई फाइंड आउट करना सीखांगे कि किवें आपां रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई फाइंड आउट कर सकते हैं। सब तो पहला जो मास डिफरेंस हुंदा है, सब तो पहला आपां मास डिफरेंस देखते हैं मिरर न्यूक्लियाई दा, बिकॉज आपां देखिया कि 2 सैकेंड पॉइंट दे विच रेडियस, थर्ड पॉइंट दे विच मास डिफरेंस दोनों ही आपां फाइंड आउट करने सीखांगे। पहला आपां देखते हैं मास डिफरेंस। जो मास डिफरेंस हुंदा है वो देखो अपने को एक मिरर न्यूक्लियाई दे विचों दूजे दा मास आपां माइनस करांगे ते आपां नूं ये भी पता है कि जिहड़ा न्यूक्लियर मास है उसका फॉर्मूला की हुंदा है। न्यूक्लियर मास का फॉर्मूला देखो पहला तो आपां मास डिफरेंस लिखांगे दोनों के मासिस का डिफरेंस। न्यूक्लियर मास का फॉर्मूला हुंदा है ये वाला ZMP + A माइनस ZMN ते नाल सारियां फिर वॉल्यूम टर्म, सरफेस टर्म, कूलम्स टर्म, एसिमेट्री टर्म ते पेयरिंग एनर्जी टर्म, ये सारियां टर्म्स होणगियां। अगर आप ये सारियां वैल्यूज पुट कर दिए, जो आप इस वाले फर्स्ट वाला जो न्यूक्लिया है उसका लिखांगे सेम टर्म ही लिखांगे। जो सैकेंड वाला जिथे जिथे Z है उत्थे उत्थे आप की लिखांगे A माइनस Z लिखांगे। देखो जो आ वालियां टर्म्स ने AVA ते सरफेस एनर्जी टर्म ते अपने को उस तो बाद जो लास्ट वाली टर्म है पेयरिंग एनर्जी टर्म, ये सारियां टर्म्स कैंसल आउट ही हो जाएंगे बिकॉज मास नंबर तो दोनों का सेम ही है ते विचाले अपने को माइनस है तो ये सारियां टर्म्स कैंसल आउट ही हो जाएंगियां ते बचनगियां ये वाली टर्म्स एक ए टर्म, एक सैकेंड वाली टर्म, एक अपने को थर्ड वाली कूलम एनर्जी वाली टर्म ते एक अपने को एसिमेट्री एनर्जी वाली टर्म। ये सारियां टर्म्स अगर आप सॉल्व करांगे सैकेंड न्यूक्लियाई दे लिए जिथे जिथे Z है उत्थे आप A माइनस Z पुट करके जो आप सॉल्व करांगे तो अपने को ये जो फॉर्मूला है बच जाएगा मास डिफरेंस का MP मास ऑफ प्रोटोन माइनस MN मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस AC कूलम एनर्जी कांस्टेंट
अपॉन ए दी पावर 1/3 सी स्क्वायर इंटू ए माइनस 1। ये अपने कोल फॉर्मूला बच जाएगा मास डिफरेंस के लिए। तो ये फॉर्मूलाज नू नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ने बिकॉज न्यूमेरिकल्स इन्हां दे नाल ही सॉल्व होणगे अपने कोल। हाँ जी, तो अपने कोल मास डिफरेंस है। अगर आप बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट करिए तो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस कितना होएगा, डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा ई बी दे नाल डिनोट कर रहे हैं ए सी अपॉन ए दी पावर 1/3 बिकॉज बाकी सारियां जो एनर्जी टर्म्स ने चाहे वॉल्यूम, सरफेस एनर्जी टर्म, पेयरिंग एनर्जी टर्म, सिमेट्री एनर्जी टर्म, वो सारे टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगियां, सिर्फ अपने कोल कूलम एनर्जी टर्म ही बचेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी दे विच जो डिफरेंस है, बाइंडिंग एनर्जी दे विच डिफरेंस आपां आ वाला फॉर्मूला यूज करके कड्डांगे। सिमिलरली जो अपने कोल मास डिफरेंस कड्डिया सी उवें ही फर्स्ट वाले न्यूक्लियाई लई सेम एक्सप्रैशन एज इट इज लिख लांगे। सैकेंड दे लई जिथे जिथे Z है उत्थे उत्थे A माइनस Z दे नाल रिप्लेस करके आपां सॉल्व करांगे। बट आपां नूं एग्जाम दे लई फॉर्मूलाज ही चाहिए ने, आपां देख लेने ए सी अपॉन ए दी पावर 1/3 इंटू ए माइनस 1। ये तो बाइंडिंग एनर्जी दे विच डिफरेंस है। अगर अपने कूलम्बियन एनर्जी दे विच डिफरेंस फाइंड आउट करना होवे उस दे लई भी फॉर्मूला सेम ही है बिकॉज इस दे विच भी तां कल्ली कूलम एनर्जी ही है। ते जो अपने कोल ए सी है, ए सी कॉन्स्टेंट हुंदा है ते इसकी वैल्यू भी याद रखनी है 3/5 के ई स्क्वायर अपॉन आर नोट हुंदी है ए सी दी वैल्यू। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुण आपां इहदा मास डिफरेंस देखिया, एनर्जी डिफरेंस देखिया ते जो कूलम्बियन एनर्जी डिफरेंस देखिया। हुण आपां फाइंड आउट करना इस दे नाल रेडियस कि आपां मिरर न्यूक्लियाई दी रेडियस किवें फाइंड आउट कर सकदे हां इस फॉर्मूला दे नाल। तो देखो मास डिफरेंस आपां फाइंड आउट कर लिया, हुण आपां फाइंड आउट करदे हां एनर्जी रेडियस। देखो आपां नूं पता है एनर्जी डिफरेंस ये आपां हुणी एक्सप्रैशन डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, तो अपने कोल जो इस दे विच ए सी है कूलम्बियन एनर्जी कांस्टेंट उसकी वैल्यू होंदी है 3/5 के ई स्क्वायर अपॉन आर नोट। वो वैल्यू आप पुट करती 3/5 के ई स्क्वायर अपॉन आर नोट वैल्यू पुट करती। आर नोट ए दी पावर 1/3 ये अपने कोल किस दे इक्वल हुंदा है, आर दे इक्वल हुंदा है। आपां डिस्कस करके आए हैं पिछे जो आपां प्रॉपर्टीज डिस्कस कीतियां सी कि आर इज इक्वल टू आर नॉट ए दी पावर 1/3। तो आर नॉट ए दी पावर 1/3 नूं आपां की पुट कर लिया, आर पुट कर लिया। इस तो बाद ये एक्सप्रैशन है, इस दे विच अगर आपां रीअरेंज करांगे तो आर दी वैल्यू होएगी के की है अपने कोल के दी वैल्यू होएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीन 9 इंटू 10⁹। एनर्जी डिफरेंस आपां नूं दिता होगा जां दोनों मिरर न्यूक्लियाई दी एनर्जी दिती होगी आपां डिफरेंस फाइंड आउट कर लांगे। ई चार्ज हुंदा हैगा प्रोटोन दे उपर जां जिस भी आपां न्यूक्लियाई दी गल कर रहे तो आपां प्रोटोन दा ही चार्ज लेके चलांगे। ते ए अपने कोल मास नंबर हुंदा है। ये सारियां वैल्यूज पुट करके आपां रेडियस डिफरेंस है जो फाइंड आउट कर रेडियस है जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल जो आपां डिस्कस करांगे उदों ज्यादा क्लीयर हो जाएंगे ये फॉर्मूले। हाँ जी, फोर्थ एप्लीकेशन है अपने कोल सैमी एम्पीरिकल मास फॉर्मूला दी मोस्ट स्टेबल ऑफ आइसोबार एटम्स। अगर अपन आइसोबार एटम्स गिवन ने तो उन्होंने विचों मोस्ट स्टेबल केड़ा होएगा वो देखना है आपां। ठीक है, तो ये अपने कोल फोर्थ एप्लीकेशन है। हाँ जी, तो अगर आपां देखना है मोस्ट स्टेबल आइसोबार तो आपां की करदे हां, आपां इहदे लई पहला फॉर्मूला देखना है कि आपां केड़ा फॉर्मूला अप्लाई करांगे। अपने कोल मास दा फॉर्मूला आपां नूं पता है मास ऑफ एटम दा। अगर आपां ने स्टेबल आइसोबार देखना होवे तो आपां की करदे हां, आपां करली एम बाय करली जेड नूं 0 दे इक्वल रखदे हां। मतलब मास दा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करके उन्होंने 0 दे इक्वल रखदे हां। 0 दे इक्वल रख के देखो अपने कोल जेड तां इस टर्म दे विच तां है नहीं, इस टर्म दे विच भी नहीं तां 0 ही हो जाणगियां ते इस टर्म दे विच भी जेड नहीं, ये भी 0 ही हो जूगी डेरिवेटिव इसदा भी। सिर्फ ये टर्म्स आणगियां, इत्थे डेरिवेटिव आ जाएगा MH, इत्थे आ जाएगा -MN बिकॉज माइनस जेड है। सिमिलरली इस दे विच आपां Z स्क्वायर माइनस Z कर लांगे अंदर जो मल्टीप्लाई होएगा Z स्क्वायर माइनस Z उसका डेरिवेटिव आएगा 2Z माइनस 1 ते इत्थे भी अपने कोल पावर रूल लग जाएगा, सॉल्व करके अपने कोल डेरिवेटिव ये आ जाएगा। अगर आपां स्टेबल आइसोबार करना होवे तो आपां करली M बाय करली Z नूं 0 दे इक्वल रख दिया। आपां 0 दे इक्वल रखिया, रीअरेंज करके Z दी वैल्यू कड्ढी कि मिनिमम केड़ी Z दी वैल्यू दे लई मतलब केड़े एटॉमिक नंबर दे लई जो आइसोबार है वो स्टेबल होएगा। सब तो पहला आइसोबार हुंदा की है जिन्हां दे विच मास नंबर सेम है ते अपने कोल एटॉमिक नंबर की हुंदा अलग अलग हुंदा, जिवें 2 हीलियम 6 3 लिथियम 6 ये दोनों आइसोबार्स ने, इन्हां दा मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग है। ठीक है, मतलब अपने कोल इन्हां दे विच मास नंबर सेम है तो केड़ी Z दी वैल्यू दे लई केड़ी मिनिमम Z दी वैल्यू दे लई अपने कोल की होएगा आइसोबार है जो वो स्टेबल होएगा, आपां वो देखना है। ठीक है, तो अपने कोल आपां Z मिनिमम दी वैल्यू कड्ढण दे लई फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करके रीअरेंज करके Z मिनिमम कढ लिया।
ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕੂਲਮ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮੈਟਰੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 23.6925 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੂਲਮ એનર્ਜੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿਮੈਟਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਮਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿਮੈਟਰੀ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 8 ਇੰਟੂ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚੇਗੀ A ਆਫ ਕੂਲਮ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੂਲਮ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਿਮੈਟਰੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੂਲਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 0। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ 1 ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 4 ਇੰਟੂ ਸਿਮੈਟਰੀ ਅਪੋਨ A, ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 8 ਇੰਟੂ ਸਿਮੈਟਰੀ वाला कांस्टेंट जो है ये कट गया आपस दे विच, 4 नाल 8 भी कट जाएगा, की आ जाएगा A/2। तो अगर अपने कोल कोई आइसोबार्स दिते हुए ने, किसी आइसोबार दे विच जो Z है मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो मास नंबर दे हाफ दे इक्वल है, तो वो वाला आइसोबार है जो ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ Z ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ जो Z है 3 ਉਹ A/2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, 6/2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹੀਲੀਅਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ Z ਅਗਰ Z A/2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਈਸੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਿਥੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੋ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਸੋਬਾਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ Z ਹੈ ਉਹ A/2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Z ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ 8 ਇੰਟੂ ਜੋ 8 ਇੰਟੂ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ 4 ਇੰਟੂ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ 4 ਇੰਟੂ ਸਿਮੈਟਰੀ ਟਰਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਚੇਗਾ A, ਇੱਥੇ ਬਚੇਗਾ 2/4 AC/A ਸਿਮੈਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇੰਟੂ A ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 ਪਲੱਸ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਏਗਾ A ਕੂਲਮ ਅਪੋਨ A ਸਿਮੈਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ 2 ਵੀ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 0.015। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆਈਸੋਬਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Z ਹੈ ਜੋ ਵੀ A/2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਆਈਸੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੈਮੀ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਟਰਮ ਆਫ ਸੈਮੀ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਟੇਨਸ ਡੈਸ਼, ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਰਫੇਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ES AS ਇੰਟੂ A ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 ਹੋਏਗਾ ਸਰਫੇਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ B। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਫॉर ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ AS ਇੰਟੂ A ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ AS ਇੰਟੂ 27 ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3, ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ AS ਇੰਟੂ 64 ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3, ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਉਹ 64 ਹੈ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਲਈ 27 ਹੈ। 27 ਨੂੰ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, AS ਨਾਲ ਤਾਂ AS ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 1/3 ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ 9/16, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ D ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਟ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ Z ਫॉर ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਆਈਸੋਬਾਰ। ਆਪਾਂ ਨੇ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਆਈਸੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਬਲ ਆਈਸੋਬਾਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ M ਦਾ ਜੋ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ Z 0 ਰੱਖ ਲਓ ਅਗਰ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ Z 0 ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ,
विद रिस्पैक्ट टू Z फर्स्ट ते सैकेंड टर्म दे विच तां Z है ही नहीं, खत्म हो गया। थर्ड टर्म दे विच Z दा डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू Z कितना हो जाऊगा, Z स्क्वायर दा 2Z। फोर्थ दे विच अपने कोल n माइनस Z है, पहला पावर रूल लगा लिया, फिर n माइनस Z दा डेरिवेटिव -1 आ गया, सॉल्व करके 0 दे इक्वल रख लिया इसनू, बिकॉज ये कंडीशन है स्टेबल आइसोबार दी, ये कंडीशन है कि करली EB बाय करली Z इक्वल टू 0 या फिर करली M बाय करली Z इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, डायरैक्टली भी पूछ सकते हैं कि स्टेबल आइसोबार दी की कंडीशन हुंदी है, ठीक है, ते अदरवाइज न्यूमेरिकल्स दे विच भी। फिर आपां की करदे हां, थोड़ा रीअरेंज किया इसनू, जो n हुंदा है न्यूट्रॉन्स वो मास नंबर माइनस प्रोटोन नंबर दे इक्वल हुंदा है, A माइनस Z करके न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। हुण आपां नूं पता है कि आपां ने कढनी Z दी वैल्यू है, आंसर सारा A दी फॉर्म दे विच है, तां न्यूट्रॉन्स आ किते भी नहीं इनवॉल्व, तां आपां न्यूट्रॉन्स नूं A माइनस Z लिख लैंदे हां। लिख के फिर की करना है, थोड़ा रीअरेंजमेंट है, आप सॉल्व किया -3/4 × 2 है, इधर 60 पे इन्होंने सॉल्व किया 80 बन गया। इधर अपने को A/A -2Z/A लिख सकते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई करके अपने को Z की वैल्यू आ जाएगी A/2 1 - A दी पावर 2/3/160 × दी पावर -1। इस दे विच कुछ नहीं, सिंपलीफिकेशन है मेन। अगर तुहानू कंडीशन पता है तो तुसी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इहदे विच अपने को आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो ये कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि अपने किसी भी जो अपने स्टेबल आइसोबार दे लिए Z की वैल्यू कढनी है तो अपने को यही तरीका है फाइंड आउट करने का। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है, अपने डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मिरर न्यूक्लियाई कढना है। अपन दो न्यूक्लियाइज दिते हुए ने, कार्बन ते नाइट्रोजन, R0 की वैल्यू भी पता है, ठीक है। अपन ये पता है भी जो मिरर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है वह फॉर्मूला आप डिस्कस किया सी, AC/A दी पावर 1/3 × A-1। AC की वैल्यू भी आप डिस्कस की 3/5 K(E²/R0 होंगी है, K की वैल्यू 9 × 10⁹ होंगी है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होंगी है, तो R0 अपन दिता होया 1.3 फर्मी। तो इत्थे उस तो बाद अपने को जो A की वैल्यू है वो है 13, क्योंकि अपन पता है कि A अपने को मास नंबर होंगे वो अपने को 13 दी हुई है, ठीक है। सारिया वैल्यूज आप पुट करते हैं, इत्थे आएगा 3/5 K(E²), सॉरी इत्थे ना अपने को R0 की वैल्यू पुट करनी रहेगी, देखो 1.3। तो अगर आप इसनू सॉल्व करांगे तो आप सारिया वैल्यूज पुट कर देने। R0 की वैल्यू 1.3 अपन गिवन है, फर्मी है, तो आप मीटर दे विच कन्वर्ट करांगे 10⁻−15 होंदा है 1 फर्मी, 10⁻−15 मीटर। सारिया वैल्यूज पुट कीतियां, बट ये जाउल दे विच है, इस फॉर्मूला नाल जो एनर्जी आऊगी वो जाउल दे विच आऊगी। अगर जाउल नूं इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच कन्वर्ट करना है तो आपां नूं 1.6 × 10⁻−19 दे नाल डिवाइड करना पऊगा, बिकॉज आपां नूं पता है 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट हुंदा जो 1.6 × 10⁻−19 जाउल दे इक्वल हुंदा। तो जाउल नूं इलैक्ट्रॉन वोल्ट च कन्वर्ट करने लई आपां इसनूं इस टर्म नाल डिवाइड करांगे। जो डिवाइड करता एक अपने को स्केयर पिया वही टर्म दा ऊपर, इत्थे नीचे आऊगा तो एक टर्म नाल एक टर्म कट जाएगी, ये कन्वर्ट हो गया इलैक्ट्रॉन वोल्ट च। बट अगर अपने मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच कन्वर्ट करना है तो अपन 10⁶ नाल भी की करना पएगा, डिवाइड करना पएगा। उस तो बाद आप की करते हैं सॉल्व करके अपने को आंसर आ जाएगा 3.39 मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी इज द डिफरेंस फॉर दी मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई दे लई बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आप डिस्कस किया सी कि ये हुंदा। उस तो बाद अपने को की होएगा डिफरेंस बिटवीन कूलम एनर्जी। कूलम एनर्जी दे विच डिफरेंस कढना है, वही अपने को सेम हुंदा। कूलम एनर्जी दे विच डिफरेंस फॉर्मूला भी यही हुंदा। ते आपां नूं इस दे विच बस डिफरेंस ये है कि उत्थे आपां नूं R0 की वैल्यू गिवन सी, इत्थे आपां नूं इस दे विच R0 गिवन सी, इत्थे आपां नूं कंप्लीट रेडियस ही गिवन है। आपां नूं AC की वैल्यू पुट करके नीचे की बन गया R0 × A की पावर 1/3, ते R0 × A की पावर 1/3 की हुंदा, रेडियस हुंदा। आपां ने आपां नूं इत्थे डिफरेंस दिता होया है ते आपां ने रेडियस फाइंड आउट करनी है। डिफरेंस मीनस डेल्टा EB की वैल्यू आपां नूं 6 दिती हुई है, ते आपां इत्थे फॉर्मूला लगावांगे, सारिया वैल्यूज पुट करांगे, रीअरेंज करके R की वैल्यू फाइंड आउट करांगे। बट जो अपने कोल यह फॉर्मूला है इस दे विच आपां इस टर्म नाल डिवाइड करांगे, बिकॉज पहला इस नाल डिवाइड करांगे पूरी टर्म नूं, इस नाल डिवाइड करांगे तो ये सारी टर्म इलैक्ट्रॉन वोल्ट च कन्वर्ट होएगी। अगर 10⁻6 नाल डिवाइड करांगे तो ये सारी टर्म मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच कन्वर्ट होएगी, क्योंकि आपां नूं एनर्जी आपां नूं मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच दित्ती हुई है, तो इधर वाली भी सारी टर्म आपां नूं मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच चाहीदी है। या फिर आपां ये कर सकते हैं कि जो ये एनर्जी है इसनूं ही आपां जाउल दे विच कन्वर्ट कर लईए।
तो देखो इत्थों अगर आप सॉल्व करके आर की वैल्यू कढ़ीए इस तरीके नाल सॉल्व करांगे आप 6 नूं पहला मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट नूं इलैक्ट्रॉन वोल्ट च कन्वर्ट किया 10 की पावर 6 नाल मल्टीप्लाई करके फिर इलैक्ट्रॉन वोल्ट नूं जाउल दे विच कन्वर्ट किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नाल मल्टीप्लाई करके बिकॉज जो राइट हैंड साइड है वो जाउल दे विच है तो इत्थे मिसटेक हो जाती है इत्थे मिसटेक नहीं आपां करनी आपां ने पहला मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट नूं जाउल च कन्वर्ट करना है फिर कंपेयर करना है दोनों नूं ठीक है। इस साइड ते अपने कोल जो जो फॉर्मूले दे अकॉर्डिंग वैल्यूज सी आपां सारियां वैल्यूज पुट करतियां इत्थे अपने कोल ई स्क्वायर है तो एक ई स्क्वायर दे नाल एक टर्म दे नाल एक टर्म कट जाएगी अपने कोल बिकॉज इधर भी सेम टर्म पई है ते अपने कोल a-1 हुंदा ते a दी वैल्यू अपने कोल 49 गिवन है वैल्यूज पुट कीतियां रीअरेंज किया सारा आपां ने सॉल्व किया अपने कोल r दी वैल्यू आ गई 6.912 इंटू 10⁻⁻15 मीटर या फिर आपां कह सकते हैं 6.912 फर्मी ठीक है तो ये अपने कोल आंसर आ जाएगा। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोस्ट स्टेबल इन 2 हीलियम 6 एंड 3 लिथियम 6 इन्हां दोनों दे विचों स्टेबल किहड़ा है ज्यादा ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि अगर A = 2Z है किसी भी दो एटम्स दे विचों A = 2Z है किसी एटम दे विच तो वो ज्यादा स्टेबल होएगा तो 3 लिथियम 6 ज्यादा स्टेबल होएगा बिकॉज 6 = 3 × 2 इस दे विच अपने कोल AZ दा ट्वाइस नहीं हैगा इस दे विच है तो A ज्यादा स्टेबल होएगा। नेक्स्ट है अपने कोल दो आपां नूं एटम्स दिते हुए ने बट किसी दे विच भी ट्वाइस नहीं हैगा जो अपने कोल ए है वो Z दे तो इन्हां दे विचों ज्यादा स्टेबल किहड़ा होएगा उसके लिए आपां फॉर्मूला जो डिस्कस किया सी उहनूं आपां यूज करांगे। देखो इस दे विच आपां फॉर्मूला लगावांगे पहला 3 लिथियम 7 दे लई कड्डांगे ए दी वैल्यू 7 है ते अपने को इस फॉर्मूला च पुट करांगे फिर आपां 3 लिथियम 8 दे लई कड्डांगे तो अपने को जो ज्यादा वैल्यू आई है जो घट वैल्यू आई है वो किहदे लई आई है 3 लिथियम 7 दे लई तो जिहदे लई मिनिमम वैल्यू आंदी है वो वाला जो अपने को स्टेबल हुंदा है एटम तो अपने को इस दे विच 3 लिथियम 7 ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इस दे विच वैल्यू 3.88 है तो इस दे विच 3.4 है जिसके लिए Z मिनिमम वो ज्यादा स्टेबल होएगा तो अपने को 3 लिथियम 7 विल बी मोर स्टेबल जी। नेक्स्ट अगर आप देखना होवे कि A दी वैल्यू गिवन है तो केड़ा आइसोबार उस A दी वैल्यू दे लिए ज्यादा स्टेबल होएगा Z दी किन्नी वैल्यू लिए आइसोबार ज्यादा स्टेबल होएगा तो अपने को देखो Z = A अपॉन अदरवाइज फॉर्मूला च इत्थे आपां 2 लैके चलदे हुंदे हैं ठीक है बट अगर आपां ने ऐसा क्वेश्चन करना होवे जिस दे विच आपां नूं मोस्ट स्टेबल आइसोबार पुछया होवे A दी वैल्यू गिवन होवे तो उत्थे आपां अप्रोक्सीमेट नहीं आपां एग्जैक्ट वैल्यू लैके चलांगे दैट इज 1.98 हुंदी है एग्जैक्ट वैल्यू तो इत्थे आपां वैल्यूज पुट कीतियां पुट करके आपां सॉल्व करांगे Z 28.8 आ गया अप्रोक्सीमेट अपने कोल कितना आंसर आ जाएगा अगर इनू राउंड ऑफ करांगे 29 बिकॉज जो एटॉमिक नंबर हुंदा कदे भी फ्रैक्शन च नहीं हुंदा तो Z = 29 दे लिए अपने कोल जिहड़ा आइसोबार है वो ज्यादा स्टेबल होएगा। ऑप्शंस दे विच 27 8 29 30 एवें दे ऑप्शंस होणगे तो 29 दे लिए ज्यादा स्टेबल होएगा। हाँ जी नेक्स्ट टॉपिक है अपने कोल मास पैराबोला। मास पैराबोला की हुंदा देखो अपने कोल मास का पहला रिलेशन पता है एटॉमिक मास का की रिलेशन हुंदा आपां इस रिलेशन नूं थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं सिंपलीफाई मीन आपां ए वालियां टर्म्स अलग कर लिया Z वालियां टर्म्स अलग कढ लिया Z² वालियां अलग ते जो अपने कोल पेयरिंग एनर्जी वाली टर्म है उन्होंने डेल्टा नाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो ए दे नाल जो जो कॉन्स्टेंट्स आ गए उन्होंने आपां अल्फा नाल रिप्रेजेंट करते हैं Z दे नाल वाले नूं बीटा नाल ते Z² वाले नूं गामा नाल। अल्फा की वैल्यू अपने कोल आ गई MN - AV + AA ते बीटा की वैल्यू आ गई MH - MN - AC/A दी पावर 1/3 + AA ते गामा की वैल्यू आ गई AC/A दी पावर 1/3 + 4AA/ कैपिटल A। ये अपने कोल एटॉमिक जो मास नंबर है सिमेट्री एनर्जी कांस्टेंट है कूलम एनर्जी कांस्टेंट है ये अपने कोल सारे जो अपने कोल कांस्टेंट्स ने आपां जिन्हां बारे डिस्कस किया होया ठीक है। हुण अगर आपां इहदे विचों देखिए अगर अपने कोल आपां स्टेबल आइसोबार देखना होवे तां आपां गल करके आए कि स्टेबल आइसोबार दे लई आपां करली M/करली Z नूं 0 दे इक्वल रखदे हुंदे आ करली M/करली Z नूं 0 दे इक्वल रखांगे करली M/करली Z मीनस आपां इसदा डेरिवेटिव करांगे विद रिस्पेक्ट टू Z इस दे विच तां Z है ही नहीं इस दे विच भी नहीं हैगा तां आपां इत्थों कड्डांगे Z डेरिवेटिव इन्हां दोनां दा ही होएगा की आएगा बीटा + 2 गामा Z = 0 तां स्टेबल आइसोबार दे लिए कंडीशन हुंदी है उत्थों Z0 दी वैल्यू कितनी आ गई -β/2 गामा मीनस स्टेबल आइसोबार दे लई जो अपने कोल मिनिमम एटॉमिक नंबर होएगा वो कितना होएगा -β/2
2 गामा होना चाहिए हैगा। ਤਾਂ अगर ਇੰਨੀ वैल्यू होएगी उस ਆਪਾਂ आइसोबार ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ स्टेबल कहांगे। ਹੁਣ ਉਹ स्टेबल वैल्यू जो Z ਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਦੀ वैल्यू ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸ ਵਾਲਾ जो आइसोबार है वो स्टेबल है। बट अगर ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ऑड ਜਾਂ ਈਵਨ आइसोबार है, ऑड ਜਾਂ ਈਵਨ आइसोबार ਦੇ ਲਈ पेयरिंग एनर्जी 0 नहीं ਹੁੰਦੀ। मीनस अगर अपने कोल प्रोटोन ते न्यूट्रॉन दोनों ओड ने ਜਾਂ दोनों ਈਵਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ पेयरिंग एनर्जी 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਦੋ ਸਟੇਬਲ ਆइसोबार्स ਆਣਗੇ। बट अगर ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ओड प्रोटोन्स ਈਵਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਈਵਨ प्रोटोन ओड ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ 0 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ स्टेबल आइसोबार होएगा। तो स्टेबल आइसोबार 2 होंगे फॉर ऑड और ਈਵਨ आइसोबार, एक होएगा फॉर ऑड ਈਵਨ आइसोबार। ठीक है। तो यही चीज दसी हुई है कि अगर ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑड है ਤਾਂ ਜਾਂ प्रोटोन ओड होणगे न्यूट्रॉन ਈਵਨ होणगे ਜਾਂ ਫਿਰ न्यूट्रॉन ਈਵਨ होणगे प्रोटोन ओड होणगे। सॉरी ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ सेम ही गल होगी। ਇੱਥੇ न्यूट्रॉन ओड प्रोटोन ਈਵਨ। इन्हां केसिस दे विच डेल्टा की होएगा 0 होएगा। डेल्टा 0 होएगा तो अपने कोल इत्थों इक्को ही स्टेबल आइसोबार आएगा। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर है, 65 मास नंबर है। तो 27 एटॉमिक नंबर की हो गया प्रोटोन्स ओड ने, तो इहदे विच अपने कोल न्यूट्रॉन्स की होणगे ਈਵਨ होणगे। तो अपने कोल इस दे विच अपने कोल सिंगल ही जो स्टेबल आइसोबार आएगा। अगर अपने कोल ए ਈਵਨ है तो ਜਾਂ दोनों प्रोटोन से न्यूट्रॉन्स ਈਵਨ होणगे या दोनों ओड होणगे। उस केस दे विच अपने कोल डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो दो स्टेबल आइसोबार्स आएंगे। तो जिहड़ी ये इक्वेशन बन गई, ये पैराबोला दी इक्वेशन बन गई। तो अपने कोल जो मास ते Z दा जो अपने कोल ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो अगर अपने कोल ए कंडीशन है तो इत्थे सिंगल पैराबोला बनेगा। अगर यह कंडीशन है अपने कोल ए ਈਵਨ वाली तो उत्थे अपने कोल डबल पैराबोला बनेगा। और देखते ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਬਲ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੇਬਲ ਆइसोबार ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਲੀ m ਬਾਈ ਕਰਲੀ z ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਆइसोबार ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ z ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ m ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ z ਸਕੁਅਰ, ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਲਈ z ਇਕੁਅਲ ਟੂ z0 ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਹੈ, ठीक है। तो मास की हो गया अपने कोल ਈਵਨ हो गया। तो अपने कोल जेडे प्रोटोन्स ते न्यूट्रॉन्स ने या ਈਵਨ ने या दोनों ओड ने, सारे केसिस दे विच ही देखो अपने कोल इस दे विच कोबाल्ट च प्रोटोन ऑड ने 27 ने, तो न्यूट्रॉन्स भी की हो जाएंगे ऑड हो जाएंगे। फाइंड आउट करांगे जो माइनस करके। इस दे विच प्रोटोन ਈਵਨ ने तो न्यूट्रॉन भी ਈਵਨ हो जाएंगे, माइनस करके आऊगा। मतलब सारे केसिस दे विच जे एक चीज ओड है, प्रोटोन ओड ने तो न्यूट्रॉन भी ओड ने, प्रोटोन ਈਵਨ ने तो न्यूट्रॉन भी ਈਵਨ होंगे। तो इन्हां दे विचों स्टेबल देखना है आपां। सब तो पहला तो इहदे पैराबोलास दो बननगे, दो पैराबोलास बननगे। जेहड़ी अपने कोल ਈਵਨ वाला पैराबोला है वो नीचे वाला होंदा है ते ऑड वाला पैराबोला ऊपर वाला होंदा है। सब तो पहला देखो ऑड वाला कोबाल्ट, ऑड वाला पॉइंट है तो यह ऊपर वाले पैराबोला ते लाई करूगा। Z इज इक्वल टू 27 इत्थे लाई कर जाएगा ये। फिर अपने कोल ਈਵਨ वाला पैराबोला केड़ा नीचे वाला, Z इक्वल टू 28 क्योंकि इस साइड ते Z इंक्रीज हो रहा है तो इत्थे 27 तो अगे ही होएगा पर नीचे वाले पैराबोला ते। फिर Z इज इक्वल टू 29 ऑड ऊपर वाले पैराबोला ते, Z इज इक्वल टू 30 ਈਵਨ नीचे वाले पैराबोला ते, फिर अगले वाला ऑड तो ऊपर वाले पैराबोला ते। तो हुण देखो सब तो ज्यादा अपने कोल मिनिमम Z किन्ना दे लई होएगा, 21 दे लई होएगा, 21 दे लई होएगा। तो ये दोनों की होणगे अपने कोल ज्यादा स्टेबल होंगे। Z इज इक्वल टू 28 वाला ते Z इज इक्वल टू 30 वाला, ये दोनों स्टेबल होंगे। आपां गल कीती भी सी कि अगर अपने कोल मास नंबर ਈਵਨ है तो अपने कोल जा मतलब दोनों ऑड ने या दोनों ਈਵਨ ने, तो उस केस दे विच अपने कोल दो स्टेबल आइसोबार्स आएंगे ते ये दोनों अपने कोल स्टेबल आइसोबार्स ने। ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A = 2Z ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ।